زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین بدیع السماوات والارضین جامع الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ماہ ذوالحجہ کی آج دوسری تاریخ ہے اور دھیرے دھیرے ایام حج قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. حجاج کرام کے قافلے تقریباً پہنچ چکے ہیں. بعض حجاج وہ ہوں گے جو عمرے سے فارغ ہو کر حج کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. بعض حضرات وہ ہوں گے جنہوں نے عمرے سے فراغت کے بعد خود کو احرام کی پابندیوں میں مقید کیا ہوگا اور حج قران کی نیت کر چکے ہوں گے. بعض حضرات مدینہ منورہ میں ہوں گے، پھر یہاں سے روانگی کی تیاری کر رہے ہوں گے. بہرحال حکومت وہاں کی اپنے حساب سے حجاج کرام کو روانہ کرتی ہے. کسی کو پہلے مدینہ منورہ، کسی کو پہلے مکۃ المعظمہ آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. آج میں مدینہ منورہ زادہ اللہ عزت و کرامہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مدینہ منورہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اس سے پہلے میرے غالباً درجنوں بیانات ہو چکے ہیں، جن میں سے کئی بیانات محفوظ ہیں اور ہمارے چینل پر باقاعدہ موجود بھی ہیں. آپ وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں.
मदीना मुनव्वरा अज़ीम शान शहर है जो दुनिया भर के मुसलमानों के अक़ीदत का मरकज़ है। मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत करना इबादत है, बल्कि मदीना मुनव्वरा जाना, मदीना मुनव्वरा का जिक्र करना, मदीना मुनव्वरा के तज़किरे को सुनना, ये सब इबादतों में शुमार है। और इन चीज़ों से ईमान में कमाल पैदा होता है, नूरानियत में, रूहानियत में इजाफा होता है। मदीना मुनव्वरा इस रोए ज़मीन का वाहिद ऐसा शहर है कि लोग वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, फलकते हैं, आंसू बहाते हैं और अपनी बेकरारी का बाज़ाब्ता इजहार करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि दुनिया के 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों में करोड़ों मुसलमान ऐसे ना हो जो वहाँ जाने के लिए रोते हों, तड़पते हों, अपनी बेकरारी का इजहार करते हों। ये वाहिद ऐसा शहर है कि जिसकी मोहब्बत हर मुसलमान के सीने में रोशन है। और फिर लातादाद मुसलमान ऐसे हैं जो वहाँ जाने के लिए बाकायदा पैसे जोड़ते हैं, एहतमाम करते हैं, और अगर किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। ये शरफ किसी और शहर को हासिल नहीं हुआ। और क्यों ना हासिल हो, जबकि कायनात की जान, वजह तख्लीक़ कायनात, अफ़दलुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर रहमत आलम जान आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम वहाँ जलवाबार हैं। हुज़ूर रहमत आलम जान आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदम मुबारक को उस शहर ने हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात में 10 सालों तक मुसलसल चूमने का शरफ हासिल किया है। 10 साल हुज़ूर मदीना मुनव्वरा में ज़ाहिरी हयात के साथ रहे। वहाँ की गली कूचों ने आपका दीदार किया, वहाँ के ज़र्रात ने आपकी नालैन मुबारका से बरकतें हासिल की। और विसाल अक़दस के बाद आज भी रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस ज़मीन में जलवाबार हैं। और सदियों से उस अजीम शान शहर का एक हिस्सा ऐसा है जो सदियों से रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म अक़दस को छूने का शरफ हासिल कर रहा है, चूमने का शरफ हासिल कर रहा है। हुज़ूर रहमत आलम जान आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीने मुनव्वरा में गुंबद खज़रा में आराम फरमा है। और आपके मज़ार अक़दस का वो हिस्सा जो आपके जिस्म से मिला हुआ है, बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम मुसलमान इस बात का एतक़ाद रखते हैं कि वो हिस्सा खाने काबा से भी अफजल है, अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। इसमें तो इख्तिलाफ है कि मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है या मदीना मुनव्वरा अफजल है। इन दोनों शहरों के बारे में इख्तिलाफ है, इसमें लंबी तफसीलात है। इससे पहले मैंने उन तफसीलात के चंद गोशे यहाँ बयान करने का शरफ भी हासिल किया है। मगर जो लोग मदीना मुनव्वरा को अफजल मानते हैं या मक्कतुल मुकर्रमा को अफजल मानते हैं, इन दोनों हजरात में इस बारे में किसी के इख्तिलाफ नहीं है कि मज़ार अक़दस का जो हिस्सा पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म अक़दस से लगा हुआ है, वह हिस्सा क्या मदीना, क्या मक्का, क्या खाने काबा, क्या दीगर मुक़द्दस मकामात, ये अज़ीम शान हिस्सा तो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है ऐसा अजीम शान हिस्सा जिस शहर में होगा, जिस शहर में गुंबद खज़रा है, जिस शहर में सुनहरी जालियां हैं, जिस शहर में जन्नतुल बकी है, जिस शहर में अस्हाबे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम अहले बैत अतहार मौजूद हैं, जिस शहर के जर्रे जर्रे को, जिस शहर की झाड़ियों को, दरख्तों को, पहाड़ों को पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम से निस्बत हासिल है, ऐसे शहर से मोहब्बत नहीं की जाएगी तो किस शहर से मोहब्बत की जाएगी? तो वहां से मोहब्बत करना ये आशिकों की अजीमुशान निशानी है। कोई भी शहर ऐसा नहीं दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो इस मामले में मदीना मुनव्वरा का मुकाबला कर सके। मदीना मुनव्वरा की अज़मत और शान शुअरा ने बयान की है। मदीना मुनव्वरा की अज़मत और शान पर 1000 2000 नहीं, करोड़ अशार लिखे गए हैं, लाखों लाख नज़में लिखी गई हैं, न जाने कितनी तादाद में नाते और मनक़बतें लिखी गई हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा शहर नहीं है कि उसके बारे में उसका उश्र अशीर भी लिखा गया हो जितना मदीना मुनव्वरा के बारे में लिखा गया है। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अज़ीम शान शहर की कसम याद फरमाई। ये कोई मामूली बात नहीं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, ये पूरे सूरह बलद है 30 पारे के अंदर, मैं नमाज में अक्सर पढ़ता भी हूँ। ऐ महबूब, मैं इस शहर मुबारका की कसम खा रहा हूँ अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कि आप इसमें दिलवबार हैं, आप इसमें हैं, इस मुबारक शहर ने आपके कदमों को चूमा है और आपके कदमों की बरकत से इसको अजमतें रिफातें हासिल हुई हैं, इसलिए मैं खुदा होकर भी अपने महबूब के शहर की कसम याद कर रहा हूँ। ये मदीने मुनव्वरा की बहुत बड़ी अजमत और बहुत बड़ी शान है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब तक हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम मक्कतुल मुअज़्ज़मा में रहे, यहाँ बलद से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा रहा। हुजूर 53 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और फिर आप हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। उसके बाद यहाँ बलद से मुराद यानी शहर से मुराद मदीने मुनव्वरा हो गया। तो एक मखसूस जमाने तक बलद से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा रहा। अल्लाह ने कसम याद फरमाई कि हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा में थे और जब हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा आ गए तो अब इस आयत करीमा में क़यामत तक बलद से मुराद मदीने मुनव्वरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने मुनव्वरा की कसम याद फरमाई। निस्बतों का मामला, हम लोग तो निस्बतों वाले हैं। आज लोग निस्बतों पर बड़ी बहसें करते हैं, निस्बतों को शिर्क से, बिदअत से और नाजायज बातों से ताबीर करते हैं। निस्बत का नाम सुन लेते हैं तो चिढ़ जाते हैं, जबकि मेरा दावा ये है और हमारे उलमा फरमाते हैं जो लोग निस्बतों से चिढ़ते हैं वो आके बहस कर लें, एक कदम भी निस्बतों के बगैर वो चल नहीं सकते हैं। जगह जगह हमें निस्बतों का सहारा लेना पड़ता है। ये जितनी भी दीन इस्लाम की इबादतें हैं, रियाजतें हैं, मुजाहदात हैं और जितनी भी मुकद्दस चीजें हैं, इन सब की निस्बत किसी न किसी जिहा से पैगम्बरों की जानिब है या रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जानिब है। खुद हज बैतुल्लाह देख ले, वहां क्या होता है? खाने काबा का तवाफ करते, क्यों तवाफ कर रहे हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया तो क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया? इसलिए कि अल्लाह के नबियों ने, फरिश्तों ने, बिलखुसूस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने और फिर बिलअखस आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा का तवाफ किया। ये निस्बती तो हो क्या है? सफा मरवा के सही करते हैं निस्बतों की बुनियाद पर, अरफात जाते हैं निस्बत की बुनियाद पर। तो कदम कदम पर निस्बतों का सहारा है। दीन इस्लाम की बुनियाद ही निस्बत पर है। जो शख्स निस्बत का सिरे से इनकार कर दे और कहे हम किसी निस्बत को नहीं मानते हैं, पैगम्बर आजम की जान निस्बत हो या किसी और शय की जान निस्बत हो, हम निस्बत को तस्लीम नहीं करते हैं, ऐसा शख्स दीन इस्लाम के इनकार कर रहा है। ऐसा शख्स निस्बत के इनकार पर वही दलीलें पेश कर रहा है जो मुल्हिदीन, इल्हाद करने वाले, दीन इस्लाम पर एतराज करने वाले, दीन इस्लाम पर हमला करने के लिए जिन दलीलों का सहारा लेते हैं। आप गौर कर लेंगे तो ये सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। टॉपिक मेरा ये नहीं है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर इसको बयान करूंगा मैं। तो हुजूर रहमत आलम यानी आलम को वहां रहना, हुजूर रहमत आलम वहां जलवाबार हुए, मदीने मुनव्वरा को साल तक आपके कदमों को चूमने का शरफ मिला। तो जिन गलियों ने कभी कभी हुजूर के कदमों को चूमा, जिन इलाकों ने, खित्तों ने कभी कभी हुजूर के कदमों को चूमा, वो इलाका मदीना बन गया। और जिस सरजमीन ने दिन में कम से कम 5 बार 6 बार हुजूर रहमत आलम यानी आलम के कदमों को चूमा, वो जन्नत की कियारियों में से कियारी बन गई, जिसको रियाजुल जन्नत कहा जाता है। कि हुजूर रहमत आलम यानी आलम दिन में 5 बार फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में अपने हुजरे से निकलते और अपने मिंबर के पास तशरीफ लाते, नमाज पढ़ाते, फिर तशरीफ ले जाते। तो आते वक्त भी वो इलाका हुजूर के कदमों को चूमता, तशरीफ ले जाते तब भी वो हुजूर के कदमों को चूमता। दिन में कम से कम 10 बार उस सरजमीन ने रोजाना हुजूर के कदमों को चूमा है। तो हुजूर ने फरमा दिया माँ बैना बैती और मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जो सरजमीन है ये मेरे कदमों को बाबा चूम रही है। अल्लाह ने इसको शरफ अता फरमा दिया है कि मेरे मकान और मिंबर के बीच का जो हिस्सा है ये जन्नत की कियारियों में से एक अजीम कियारी है। अब गौर फरमाइए, हुजूर के कदमों की बरकत है। सऊदी वाले भी जो निस्बतों के इनकार करते हैं, निस्बत का नाम सुनकर चिढ़ जाते हैं। लाल रुमाल वाले बदतमीज खबीस किस्म के लोग जो इब्ने सलमान के खिलाफ जो लफ्ज़ बोल नहीं सकते, सऊदी हुकूमत जो चाहे करे, इस्लाम के खिलाफ जो चाहे बकवास करे, उनके मुंह से एक ज़बान ही निकलती है। अभी शराब खाने भी वहां खोले जा रहे हैं, कल ज़िना के अड्डे भी खुल जाएंगे, इनके मुंह से ज़बान, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। मगर सुन्नी मुसलमान अगर हरी टोपी भी पहन लेता है, ये बदबख्त मुझको रोकर परेशान करते हैं, ये तुमने हरी टोपी को पहन रखी है, ये तुम्हारे जिस पर हरा लिबास क्यों है, ये तुमने हरा रुमाल क्यों डाल रखा है, ये तुम उल्टे पैर वापस क्यों आ रहे थे, ये तुम जुमा चाटी क्यों करते
हो, दुनिया भर की बकवास करते हैं। ये बकवास क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दिल में निस्बतों से नफरत कूट कूट कर भर दी गई है। इन बदबख्तों से कहा जाए कि रियाजुल जन्ना, जिसे तुम जन्नत की क्यारे मानते हो, किस बुनियाद पर मानते हो? उनको कहना पड़ेगा रियाजुल जन्ना वो सरजमीन है जिसका रसूलुल्लाह अलैहि तस्लीम के कदमों को सबसे ज्यादा निस्बत हासिल है। इस बुनियाद पर रियाजुल जन्ना है। इसी बुनियाद पर पैगम्बर आज़म ने फरमाया कि जन्नत की क्यारी है। और ये कोई मामूली बात नहीं। इस रोए जमीन पर अगर कोई इंसान जन्नत के अंदर जाना चाहे तो फिर रियाजुल जन्ना है, कोई और ऑप्शन नहीं। रियाजुल जन्ना में जो इंसान पहुंच गया, गोया कि इस रोए जमीन में जन्नत के टुकड़े के अंदर पहुंच गया। उसे बाबा चूमने का शरफ मिला था। यही मदीना मुनव्वरा जहां रसूल अकरम अलैहि तस्लीम की मज़ार अक़दस है, वो मज़ार अक़दस का हिस्सा जो सदियों से लगातार हुजूर के जिस्म को चूम रहा है। ऐसा नहीं कभी चूमा कभी नहीं चूमा, हुजूर वहां जलवाबार है। इस्लामी अकीदा आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जिसको आप, फतावे रज़विया शरीफ के अंदर भी मौजूद है, दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। हम आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को हाजिर व नाज़िर जो मानते हैं ना, ये बाज खुतबा गलत माना बयान करते हैं, उनको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, किताबों को उठा के पढ़ना चाहिए। अफसोस का मकाम ये है कि लोग पढ़ते नहीं, किताबें खोल कर नहीं देखते। तो इसलिए इधर सुना, वहां सुना, आगे सुना, पीछे सुना, 2-3-4 बातें लोगों से सुन ली, तकरीर तैयार हो गई और बोलना आता है, बस मैं पे आ गए, 1 घंटा 2 घंटा तकरीर हो गई, 20-25 हजार लिया और चलते बने। अब आप फितने में पड़ेगी कि गुमराह होगी कि क्या करेगी, उनको इससे लेना देना नहीं। हुजूर रहमत आलम हाजिर और नाजिर हमारा इस्लामी अकीदा, ये अहले सुन्नत वल जमात का तशख़्ख़ुस है, इम्तियाज है ये। मगर हाजिर और नाजिर का माना हरगिज़ ये नहीं है कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने जिस्म अक़दस के साथ हर जगह मौजूद है। ये अकीदा नहीं। देवबंदी क्या कहते हैं, देखो ये हमारे बुजुर्ग हज़रात कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहीं पर कोई देवबंदी आके बकवास करेगा कि तुम हाजिर और नाजिर मानते हो, ये लोग कुर्सी पर बैठे थे, हुजूर नीचे बैठे हुए, तुम लोग गुस्ताखी करते हो। ऐसे लोगों के गिरबान पकड़ेंगे। बदबख्त ये किसने कह दिया कि ये हमारा अकीदा है? जो हमारा अकीदा नहीं मेरे से हमारे पर क्यों उसको मान रहे हो? हुजूर रहमत आलम जान आलम हाजिर नाजिर हैं इस माने के लिहाज से कि आप अपने जिस्म के साथ अपनी कब्र अनवर के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह अनवार इलाही का मुशाहिदा कर रहे हैं, आप कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, उम्मत के दुरूद सलाम को सुनते हैं और बात फरिश्ते उम्मत के दुरूद सलाम को आक़ा करीम की बारगाह में पेश करते हैं, उम्मत की मदद फरमाते हैं। हुजूर अपने कब्र अनवर में रहकर कायनात को ऐसे देखते हैं गोया कि हथेली को देख रहे। हुजूर कब्र अनवर में रहकर जहां जाना चाहे अपने जिस्म अक़दस के साथ या जिस्म मिसाली के साथ अल्लाह ने आपको पावर इख्तियार दिया कि एक लम्हे आप झटक कर पहुंच सकते हैं। अगर एक लम्हे आप मुतअद्दिद और कई मकाम पे जाना चाहें तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। ये है हाजिर और नाजिर होने का माना। यही हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अल इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी किताबों में बयान फरमाया है और जगह जगह उसकी सराहत फरमाई है। बहरहाल ये दूसरी गुफ्तगू है। तो वो जिस्म का टुकड़ा, जब जमीन का टुकड़ा जो मुसलसल हुजूर के जिस्म अक़दस को चूम रहा है, उसको इस निस्बत की बुनियाद पर शरफ मिला है कि वो कायनात में सबसे अजीम है, हत्ता कि अर्श आज़म से भी उसको अफजल करार दिया जाता है। ये कहाँ? ये मदीना मुनव्वरा में है। ये सारी मुक़द्दस चीजें मदीना मुनव्वरा में है। और अल्लाह अकबर, खुद हुजूर रहमत आलम जान आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मदीना मुनव्वरा के सिलसिले में ऐसे ऐसे इरशादात फरमाए हैं कि अगर उनको बयान किया जाए, उनकी तशरीह की जाए तो फिर जाहिर सी बात है 1-2 जुमे नहीं, पूरे साल के जुमे गुजर जाएंगे और फिर उन इरशादात की तशरीह मुकम्मल नहीं हो पाएगी। एक इरशाद गिरामी समाज फरमाए, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ला युरीदु अहलुल मदीना बिसुइन इल्ला अज़ाबहुल्लाहु फिन्नारि ज़ौबर रसास और ज़ौबर मिल्ह फिल मा। हुजूर रहमत आलम जान आलम मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं, जो इंसान भी मदीना मुनव्वरा के रहने वालों से बुराई का मामला करे, इनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह पिघला देगा जहन्नम में, जिस तरह आग में शीशा पिघलता है या जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है, इसी तरह अल्लाह उसको गिरफ्तार आज़ाब फरमाएगा। ये मदीने की अजमत की बुनियाद पर मदीने वालों को शरफ हासिल हुआ है कि मदीने में जो मुसलमान आबाद है, इस बुनियाद पर उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करना जरूरी है कि वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पड़ोसी हैं। इस बुनियाद पर उनकी ताज़ीम और तौक़ीर जरूरी है कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करने का हमें हुक्म दिया है। और हुजूर रहमत आलम ने मदीना मुनव्वरा की शान बयान करते हुए यहाँ तक फरमाया, अल मदीना हरमुन मिन कज़ा इला कज़ा,
मदीना मुनव्वरा हरम है, मुहतरम है, काबिल तकरीम है, यहाँ से यहाँ तक। जिस तरह हरम मक्का, मक्कतुल मुअज़्ज़मा हरम है, सब जानते हैं कि हरम की जो सरजमीन है वो हरम के बाहर के सरजमीन से बहुत अफजल है। हत्ता कि गैर हरम में अगर कोई एक नेकी करता है उसको एक नेकी का सवाब, अगर कोई एक कदम आगे बढ़ के हरम में दाखिल हो जाए तो उस सरजमीन को अल्लाह ने शरफ बख्शा है कि एक कदम आगे बढ़ने के बाद जब वो हरम में दाखिल हो गया वही नेकी वहां करता है तो वो नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर हो जाती है। हरम शरीफ के अंदर किसी जानवर को हांकना, किसी जानवर को डांटना फटकारना, उसको डराना धमकाना, उसका शिकार करना, उसको कत्ल करना, कत्लो गारतगिरी करना, वैसे तो हर जगह हराम और कत्लो गारतगिरी, हरम शरीफ के अंदर और ज्यादा हराम और नाजायज है। हत्ता कि अगर कोई जानवर किसी साए में आराम कर रहा है तो किसी इंसान को इजाजत नहीं है तो उसको वहां से भगा दे, खुद बैठकर आराम करना शुरू कर दे। ये वो मुहतरम सरजमीन। हुजूर रहमतुल्लाह फरमाते जिस तरह अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा को हरम बनाया, हज़रत इब्राहिम ने उसके हरम होने का इजहार किया, उसी तरीके से मैंने मदीने मुनव्वरा को हरम करार दिया है। मदीना यहाँ से यहाँ तक हरम है। कहाँ से कहाँ तक? बार बातों में माँ बैन लाबतैहा, मदीने मुनव्वरा में 2 पहाड़ी सिलसिले, उन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के बीच का जो एरिया जहां मदीना मुनव्वरा आबाद है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के बीच का जो हिस्सा है यह पूरा का पूरा हरम है। ला यक़तअु शजरुहा वला युअबदु इमाहा, आपने फरमाया कि यहाँ के दरख्त को काटा नहीं जा सकता है, वला युसादु शैदुहा, यहाँ जो शिकारी जानवर हैं उनका शिकार भी नहीं किया जा सकता। अब सुनिए आप, इसी मकाम पर पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने मदीने मुनव्वरा से टूट कर मोहब्बत की है और जो हुजूर का आशिक और महबूब होगा, मुहिब होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, हुजूर से निस्बत की बुनियाद पर वो भी टूट कर मदीने मुनव्वरा से मोहब्बत करेगा। हत्ता कि अपने माँ बाप से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा वो मदीने मुनव्वरा से प्यार करेगा, मदीने मुनव्वरा से मोहब्बत करेगा। उसके अंदर जितनी चाहत अपने माँ बाप को देखने की होगी उससे ज्यादा चाहत मदीने मुनव्वरा का दीदार करने की होगी। ये मोहब्बत की निशानियां। हुजूर ने फरमाया मन अहदस फीही हदसन फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। ये मदीना है, मदीना। फरमाते हैं कि जो शख्स भी इसमें कोई फितना बर्पा करेगा, फितना फैलाएगा, उस पर अल्लाह की लानत है, तमाम लोगों की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है। ऐसा इंसान अल्लाह की नजर में मलऊन, फरिश्तों की नजर में मलऊन, तमाम इंसानों की नजर में मलऊन। और आगे इरशाद फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामह मिन्हु सर्फन वला अदला, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान का न फर्ज कबूल फरमाएगा न किसी किस्म का नफल कबूल फरमाएगा। फराइज भी कबूल नहीं और नफली इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में ऐसे इंसान की कबूल नहीं है। अब आप इस हदीस पाक की रोशनी में देखें कि मदीने मुनव्वरा में किन लोगों ने फितना फैलाया। आप चले जाए 100 साल पहले, जब बरतानिया और अमेरिका की सरपरस्ती में, यहूद और नसारा की सरपरस्ती में तुर्की हुकूमत के खिलाफ सऊदी हुकूमत को खड़ा किया गया, उनको असलहे दिए गए, उनको तैयार किया गया और तुर्की हुकूमत को, उस्मानी हुकूमत को खत्म करने के लिए तमाम हीले बहाने तलाश किए गए और नतीजा ये हुआ कि बिल आखिर तुर्की हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद इन सऊदी दरिंदों ने जहां जुब्बा कुब्बा पहनकर पीरे मुखा बनकर लोगों के सामने आते हैं, ऊपर से रुमाल डाल लेते हैं और खवातीन की तरफ पर्दा नशी हो जाते हैं। इन लोगों ने वो दरिंदगी का मुजाहरा फरमाया है कि मदीने मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा में हजारों नहीं न जाने कितने हजार मुसलमान को तहत कर दिया, उनको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। आज गजा के बारे हम रोते चीखते चिल्लाते हैं, ठीक है, हम अपने अफसोस का इजहार करें, मगर 100 साल पहले आज गजा के सरजमीन पर जो दरिंदे इसराइल कर रहे हैं, 100 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमीन पर और मदीने मुनव्वरा के सरजमीन पर यही सारे काम सऊदी दरिंदों ने किए थे। पूरी तारीख मौजूद है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है। जो लोग वहां जाकर थोड़ा सा उनको देखते हैं कि बहुत नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर यहाँ के मुसलमानों को वो गिरी नजरों से देखते हैं, तिरछी नजरों से देखते हैं, वो समझते हैं कि इनका इस्लाम अलग है, ये बिदअती है, दीन से दूर है। वो जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो हकीकी इस्लाम है। उनको चाहिए कि तारीख पढ़े, इतिहास पढ़े पहले, उसके बाद बात करें आकर के हमसे। सारी इतिहास में हत्ता कि अंग्रेजों ने भी इन सारी बातों को लिखा है। बहरहाल दूसरी गुफ्तगू हो गई। मैं ये कर रहा था, पैगम्बर आज़म ने फरमाया जो मदीने मुनव्वरा में फितना फैलाए इन
جن لوگوں نے فتنہ پھیلایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں کیا بیان کروں، کثرت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں۔ اتنا سمجھ لیں مدینہ منورہ کی عظمت و شان کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقام پر ذکر فرمایا، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ میرے صحابہ، میرے غلام اور میری قیامت تک آنے والی امت جس طرح مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، مجھ سے نسبت کی بنیاد پر مدینہ منورہ سے بھی ٹوٹ کر نسبت کرے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو۔ حضور رحمت عالم تشریف لائے تو وہاں پر اس وقت بخار کثرت کے ساتھ تھا، بعض صحابہ کرام بھی بخار کے زد میں آ گئے، جیسے آج ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، جانے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضور دعا فرمائی کہ اللہ تو مدینہ منورہ کی ہر چیز برکت عطا فرما اور یہاں کے بخار کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل فرما۔ حضور کی برکت، دعا کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے وہاں کی ہوا میں شفا رکھ دی، وہاں کے غبار میں شفا رکھی، وہاں کے پانی میں شفا رکھی، وہاں کے ہر چیز میں شفا رکھی ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یہ مدینہ ہے، طابہ ہے، طابہ یہ خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، خود روشن ہے اور روشن کرنے والا ہے، اس کو یثرب کہنا جائز نہیں۔ فتاوی رضیہ شریف کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو آج کی تاریخ میں یثرب کہنا ممنوع ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، اجازت ہی نہیں کہنے کی۔ وہ زمانے جاہلیت کا پرانا نام ہے، نام تبدیل ہو گیا۔ جس کو ایسے سمجھ لیں آپ کہ کسی کا نام پہلے برا ہو، اچھا نہ ہو، بعد میں کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا نام اچھا سے رکھ دے اور کہے کہ یہ نام تمہارا پرانا تھا، اب یہ نام نہیں، یہ نام تمہارا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس شخص کو اسی پرانے نام سے یاد کرے جو اچھا نہیں تھا، جس کا مفہوم اچھا نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر باتیں کہیں گے، ٹوکیں گے، غلط تم کر رہے ہو۔ بلکہ جس کا نام بگاڑا جائے گا وہ بھی ناراض ہوگا کہ میرا نام تھوڑی ہے، تھا کسی زمانے میں، اب میرا وہ نام نہیں۔ حضور نے فرمایا مدینہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے، یہ طابہ ہے، طابہ۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نقل کی ہے امام بخاری کے حوالے سے، اور امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی تاریخ الکبیر کے اندر کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ اپنی زبان سے مدینہ کو یثرب کہے، یثرب، تو پہلے تو توبہ کرے اور پھر اس کے کفارے میں، اس کے بدلے میں مدینہ کو 10 بار مدینہ کہے، مدینہ 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 مدینہ، اور مدینے کے رٹ لگائے 10 بار مدینے کا وظیفہ پڑھے، تب جا کے کفارہ ادا ہوگا۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی عظمت اور یہ ہے مدینہ منورہ کی شان، جس کو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ جب قیامت قریب ہوگی اور دجال خبیث نکل کر خدائی اعلان کرے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، مگر مکہ المکرمہ جانے کی طاقت و قوت نہیں ہوگی، نہ مدینہ منورہ جا سکے گا، نہ مکہ المکرمہ جا سکے گا۔ خود آقا کریم نے فرمایا علی مقابل مدینہ ملائکۃ لا يدخلون الطاعون ولا الدجال، مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں، نہ طاعون بیماری یہاں داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی دجال یہاں داخل ہو سکے گا، یہ خود حضور نے فرمایا۔ بہرحال جو لوگ جا رہے ہیں میں سب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، جو لوگ بعد میں بھی جائیں گے ان کو بھی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، مگر جو بھی وہاں جائیں ادب و احترام کے ساتھ جائیں۔ میں نے وہاں بڑے حالات لوگوں کو دیکھے، چیختے چلاتے ہوئے، نارمل طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے، سنہری جالیوں کے سامنے کہ جہاں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ جلوہ گر ہے، وہاں سارے آداب بھول کر سیلفیاں لینے میں، ویڈیو کالنگ کر کے گھر والوں کو دکھانے میں اپنے اعمال لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا جو ڈاکٹر اقبال نے کہی ہے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا، کہ آسمان کے نیچے اس روئے زمین کے اوپر ادب کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں جنید اور بایزید بستامی جیسے بزرگ بھی جاتے تھے تو سانسوں کو روک لیتے تھے کہ سانس لینے میں کہیں حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بمصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، کہ خود کو حضور کی بارگاہ تک پہنچا دو کیونکہ حضور ہی دین ہے۔ اگر تم اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکے تو تمہارے سارے اعمال تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، یہ بھی کہا ڈاکٹر اقبال نے۔ بہرحال ادب کا مقام ہے، وہاں چیخنا چلانا نعرے بازی کرنا ابھی ربیع الاول شریف کا موقع آ رہا، اور اس سال تو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ منعقد کیا جائے گا، تیاریاں جاری ہیں، کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے ربیع الاول شریف کے موقع پر۔
اور ہر سال کی طرح اس سال بھی وہاں چیخ چیخ کر نعرے بازی کریں گے۔ جس بارگاہ کا ادب و احترام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، آوازوں کو بلند نہ کرنا، تم اس بارگاہ میں جا کے چیخو چلاؤ جس کی شریعت اسلامیہ کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ عشق و محبت کا تقاضا نہیں۔ بادشاہ جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا روب و دبدبہ بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کو لے لیں یا ہارون رشید کو لے لیں یا کسی کو لے لیں، بڑے بڑے اسلامی بادشاہ، لوگ وہاں جا کر یوں کھڑے رہتے تھے، بولنے کی ہمت و جرات منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ یہ کیسے عاشق لوگ ہیں وہاں جا کے کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی روب و دبدبہ نہیں، چیخنا چلانا شروع کر رہے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو ادب و احترام کے ساتھ وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔